Bismillahirrahmanirrahim. Hello and everyone. Welcome to another exciting and a new innovative take on this week's Behind the Curtain. Please hold your horses as the very special guest needs no introduction, and I'm pretty sure you've been seeing her on the very, very important segment of the media industry news broadcast. Now, I know the sessions in the past have been a mix and match of the narrative focus on television, drama, and film industry. But I've always been intrigued to know what happens behind the canvas of news productions. Now, mind you, the only experience I do have is through my political candidacy, visiting newsrooms and promotion of my feature film, sitting on the other side of the table. And very recently, I got to work with international news stations in live broadcast in Toronto with CP24, CTV. So it'll be interesting to compare and contrast how things are when it comes to Pakistan media. However, today the tables have turned. My very special guest comes from a military family that definitely makes this session very interesting. Comes from a software engineering background, so relatable because I'm also coming from a very professional IT experience. So it's a jump. However, she took a huge leap of faith towards news broadcast as she was offered to work alongside with Najam Sethi. But unfortunately, the project couldn't take off as per my research. She moved on and went on to the field of reporting with expert advice by her mentors, who she takes very seriously. She also was covering news segments as the front face and eventually got to host a show personally herself with the very popular Mere Mutabik and Lekin. Mind you, all of this sounds very, very fast, but it has taken a good 10 years to reach this journey and at the accolade she is today. She took up risky time slots at being on air at 3 p.m. in a world where the audience turns into prime time to watch a very, very loud talk shows, to eventually moving prime time, hosting a very own show with control on content and discussions. I consider my guest a symbol of leading women in the news and broadcast industry and a personality to look up to for all girls wanting to become part of this ever-growing media fraternity. Ladies and gentlemen, I have with me none other than Maria Maiman. Thank you, Maria ji, and I apologize if this was Thank you so much, Rafi. introduction. I hope मैंने No, actually it was a very, very well researched introduction और बिल्कुल 100% हर बात जो आपने कही है वो ठीक है इसमें मैं तस्दीक करती हूँ उसकी अच्छा मारिया जी बात यह है कि आपके साथ मुलाकात भी हो चुकी है वॉच योर शोज एज वेल एंड न्यूज का एक सेगमेंट है मैं अक्सर ये छोटा मोटा सेगमेंट करता हूँ बिकॉज मुझे काफी तकलीफ होती है कि मुझे लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री हमारी कोई भी सेगमेंट है वो काफी अनप्रोफेशनल का शिकार हो जाती है कभी कभी आई मीन दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट साइड सो द माय पॉइंट टू रीच आउट यू वाज कि आपका इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस भी है आप यू आर अ फेस यू आर कवरिंग न्यूज सेगमेंट्स एंड आई एम ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड हाउ इट वर्क्स. So I will address these questions and it's totally up to you wherever you feel comfortable to discuss whatever you feel necessary. First of all, I would like to ask you, COVID, you were diagnosed and it's a very, very strenuous time. I hope you're feeling better and I hope you've recovered. और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोविड हुआ भी तो क्यों हुआ क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस ने उसका ख्याल नहीं रखा कि इस पहुंच पे आ गए हैं सब. हाँ अच्छा इसके 2-3 पहलू हैं एक तो एक अल्लाह का शुक्र है कोविड से मुझे रिकवर किए हुए 2 वीक्स हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो शायद इस सिचुएशन से गुजर रहे हों या आगे फ्यूचर में गुजरे उनको मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने तजर्बे की रोशनी में कि कोविड के बाद खास तौर पे जो अगले 2 हफ्ते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप वापस जल्दी से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू उसी पेज पे करेंगे तो आपकी जो काफी कमजोरियां होती हैं वो भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं जैसे लिथार्जी होती है. आई फेल्ट कि मैंने जरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कहा कि नहीं अब सब ठीक है शुरू कर लें काम सब कुछ बट आई फेल्ट इट कि नहीं मैंने वो गलत फैसला किया. और बहुत सारे लोगों को ठीक होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ सांस की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कुछ हार्ट लंग्स पे उनके इफेक्ट्स होते हैं सो बी वेरी वेरी केयरफुल आगे 2-3 हफ्ते भी फौरन ही जो है ना आप इसको इजी ना हो जाइए तो सबसे बड़ी ये बात है. अच्छा दूसरा आपने कहा कि हुआ क्यों देखिए मुझे जिस दौरान हुआ ना उस वक्त पाकिस्तान में हमने बहुत चीजें खोल दी थी लॉकडाउन भी खोल दिया तो हम तो टूरिस्ट को भी बुलाने चाह रहे थे फ्लाइट्स भी खोल दी और वो जो 3-4 हफ्ते थे जिसमें हमारा जो ग्राफ एकदम से ऊपर गया ना मुझे उसी में ही हो गया. और उसमें ये भी था कि मैं बहुत ख्याल भी करती थी लेकिन कुछ ऐसे टाइम एंड स्पेस में था जहां मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े फार्मेसीज के बिकॉज माय मदर वाज नॉट फीलिंग वेल. तो वो तमाम तर एहतियात के बावजूद बस वो वक्त ऐसा था जिसे कहते और देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस राफे बिकॉज उस घर में 9 लोग थे जिनमें 2 छोटे बच्चे भी थे जो मेरे साथ ही सोते थे और मेरे साथ ही हर वक्त होते थे उन्हें नहीं हुआ nobody else caught it I was the only one. पता नहीं ये बस जिसे कहते हैं बैड आप उसमें आ जाएं बस एक लम्हे की बात होती है किधर कहाँ से वायरस पकड़ ले ये कोई प्रेडिक्टेबल बिहेवियर अब मुझे नहीं लगता है
नाउ थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग बेटर, क्योंकि फिर हमने वो जो स्मार्ट बिल्कुल जैसे प्रिसाइज लॉकडाउन्स किए, इवेंचुअली करने पड़े। लाहौर के कुछ इलाके बंद किए, कराची बंद किया, इस्लामाबाद बंद किया, जहां ज्यादा केसेस आ रहे थे। सो नाउ वी हैव प्रीटी मच, जैसे कि हमने थोड़ा सा इसको लगाम डाल ली है, बट अगेन अभी भी जिसे कहते हैं ना कि हम ये कहें कि आर वी टोटली इन कंप्लीटली इन कंट्रोल, वी आर नॉट। सो इसमें गवर्नमेंट को भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सिंस कि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन नेक्स्ट 6-7 months, प्रॉब्ली अ ईयर, वी डोंट नो कब तक वैक्सीन आएगी। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्लस द पीपल, दे रियली नीड टू स्टेप अप। हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। आई नो इट फॉर अ फैक्ट, फॉर 4 months आई हैव रन अ प्रॉपर एजुकेशनल कैंपेन अबाउट इट। आई डिड शोज जस्ट ऑन कोविड। मैंने कहा अभी कोविड पे ही करना है, लेकिन उसके बावजूद जब आप देखते हैं लोगों का रेकलेस बिहेवियर है, कुछ उनके बिलीव्स हैं, कुछ उनके अपने सुपरस्टिशंस हैं इसको लेकर, फिर कुछ उनको लगता है जी हमें तो नहीं हो सकता बिकॉज हम एक सर्टन मैंने यहाँ तक भी सुना कि हम एक सर्टन मजहबी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हमें नहीं होगा। हाउ फनी इज दैट? और वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि, और पढ़े लिखे की तो मुझे लगता है डेफिनेशन ना हमें दोबारा डिफाइन करनी होगी कि वो शऊर और अकल और खाली स्कूल जाने, इस सब का मजमुआ होता है पढ़ा लिखा होना। सिर्फ अच्छे स्कूल में जाने का मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, राइट? आई एम टेलिंग यू अबाउट फॉरेन एजुकेटेड पीपल हु आर टेलिंग ईच अदर कि हमें नहीं होगा बिकॉज वी बिलोंग टू अ सर्टेन बैकग्राउंड। तो बस ये ऐसे ही है, बस इसी में हम नेविगेट कर रहे हैं, इसी में हम चलते जा रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए। एंड यस, यू आर राइट दैट यू बीन होस्टिंग ऑल दिस शोज ऑन वेरी वेरी, मतलब ये बहुत ही एजुकेटेड शोज हैं। अब है मजबूरी है, लोगों को काम करना है, लोगों को बाहर निकलना। हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी है, वो भी काफी फंसी हुई है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी काफी डायग्नोज हुए हैं। लेकिन क्या हमारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट वी हैव वेरी सेफ एनवायरनमेंट, एज यू बीइंग वन ऑफ एंकर ऑफ द टीवी शो? एक्चुअली राफिक कर रहे हैं, बिकॉज मैं ARY के लिए काम करती हूँ। तो हमारी कराची किंग्स की टीम थी, तो इनिशियली जब वो PSL बंद हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सो पूरी टीम के उस वक्त टेस्ट हुए थे। बिकॉज अपेरेंटली एक प्लेयर जो बाहर गया, उसने कहा मुझे सिम्टम्स है, वो कोई इंग्लिश प्लेयर था, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिज नेम, तो हम सबके टेस्ट हो गए थे। सो एक्चुअली फॉर अस इट वाज वेरी क्लोज, बहुत जल्दी। ये नहीं हुआ कि अक्सर लोग ही कहते हैं जी कि हम किसी को जानते नहीं है, जैसे कोविड हुआ हो, लोग मुझे कहते थे आप जानती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जिसकी वफात हुई हो कोविड से? 3 महीने पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब 3 महीने के बाद हम लोग जानते हैं ऐसे लोगों को भी जिन्हें कोविड हुआ है, ऐसे लोग जो अस्पताल भी गए हैं, ऐसे लोग जो अस्पताल से वापस आए हैं, ऐसे जो अस्पताल से वापस नहीं भी आए। और ये शुरू ऐसे होता है कि मैं किसी को जानता हूं जिसका कजन, यहाँ से बात शुरू हुई, फिर वो क्लोज होना शुरू हो गया नेट, फिर हुआ नहीं मेरे कजन के कजन को हो गया, फिर वो क्लोज हुआ नेट, अब मेरे कजन को हो गया, एंड देन सडनली it comes into your immediate family circle. Absolutely. And then you know that everybody knows somebody who has COVID, and every family has a case where a certain person could not recover from it. Majority की बात कर रही हूँ, not everyone. So when it became such a harsh reality, तो शायद लोगों को भी अक्ल आ गई। आपने मेरी बात की थी मीडिया के बारे में, तो उसके बाद हमने फिर फॉरेन SOPs कर लिए थे। मैं पर्सनली बताऊं, मतलब इस्लामाबाद ऑफिस जहां मैं काम करती हूँ, हमने अपने, अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं तो उसमें से हम 2 लोग आ रहे थे, कभी 3 आ जाते थे, बाकी को हमने कहा कि आप घर से काम करेंगे, और वो 3-4 माह ऐसा काम चला। फिर सैनिटाइजिंग होती थी रोजाना हमारे ऑफिस की, फिर सैनिटाइजर लगाए हुए थे, सेट पे ख्याल कर रहे हैं, कैमरामैन को मास्क दिए हुए हैं, और इससे हमने कोई 2-2.5 महीने इसको प्रिवेंट किया। ठीक है। 2-2.5 महीने के बाद ARY के ऑफिस में एक हमारे गेस्ट आए, फैसल ईदी साहब, और उनको जब पता चला कि ओहो वो तो कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर दोबारा टेस्ट हुए, पूरे दफ्तर के दोबारा टेस्ट हुए, और उसमें से कोई 65 में से शायद 7-8 लोग पॉजिटिव थे। फिर उनको वहीं से आइसोलेट करके उनको दफ्तर नहीं आने दिया, वो सब रिकवर कर गया, अल्लाह का शुक्र है। उस चक्कर में भी नहीं हुआ, हम सब बच गए। तीसरा जो मुझे हुआ वो तो कहीं बाहर से हुआ ना। अच्छा। अभी तक ARY में इन 3-4 मंथ्स अगर मैं बात, कराची में हुए, फिर कराची में टेस्टिंग करनी शुरू की, हमारे 3-4 एंकर्स वहां पे थे, कुछ वहां पे स्टाफ था, तो अग्रेसिव टेस्टिंग की SOPs देखिए जितना हम कर सकते हैं कर लें, लेकिन 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद ना कहीं भूल चूक हो ही सकती है ना। ये रेजिमेंटेड तो हम नहीं रह सकते कि भाई बिल्कुल मशीन की तरह आए, ठक सारे SOPs हर वक्त फॉलो करते रहें। कोई लम्हा, कोई दिन, कोई वक्त ऐसा होगा कि आपसे कोताही होगी और वो आपके साथ वैसा हो सकता है। सो आई थिंक मोर और लेस मीडिया में अग्रेसिव टेस्टिंग के तहत हमने काफी कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है। सो वी हैव ट्राइड, और ये सबकी वेलबींग के लिए ना, बिकॉज अगर हमारे एम्प्लॉइज या हम लोग ठीक होंगे तो हमारा काम चलेगा,
तो हम लोगों तक मालूमात पहुंच जाएंगे, you know. So yeah, I think as an employee, I feel like I'm being taken care of by the management. This is my personal feeling, and I think my team would also agree that the way when these cases came positive, they were handled and they were told कि भाई आपका जाएं, ठीक हो, सब हो, ख्याल करें. So I think जितना कर सकते हैं. देखिए, we live in a country जहाँ पे we all know के resources और सब कुछ पे कितना हम spend करते हैं. Even in that context, I think I can speak for my organization. I think we're doing pretty okay as compared to, you know, what I think it could have been a worse situation than that. I thought eventually हो जाएगा, लेकिन so far I think it's in control. Okay, so that I'm glad to know that कि इतना controlled environment है जहाँ पे you know we have population control issues and जो भी है. चले wishing everyone, you know, who's in this very terrible environment में, तो the best of wishes and health. आप ये मुझे बताएं कि एक आपकी journey रही है. Now as a woman, do you feel that there are issues for you know, girls getting into this industry? Is it एक हमारे पास बड़ा एक खतरनाक, you know, है. I mean, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं देखता था छोटी छोटी बच्चियां जब आती हैं तो किसी पुप्पो के साथ, किसी खातून के साथ आती हैं, किसी शो के साथ. It's not a protective environment. Yeah. So what would your thoughts be on this coming in front of the? Actually, Rafi, when we were growing up, now we did not have like there were women who were in the news industry. इशरत फातिमा थी, मापारा सफदर थी, लेकिन हमें लगता था ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, अनअप्रोचेबल सी खवातीन है जो एक बड़ा ही यूनिक काम कर रही हैं, और शायद पता नहीं हम कर रहे, हम मतलब कभी हम एम नहीं करते थे कि हम भी, एक आम लड़की भी ये कर सकती है, राइट. वो खवातीन हमसे बहुत आगे थी. आपकी वालदा भी करती थी टेलीविजन पे काम, राइट. यू नो कि कितना वो एक बड़ा सिलेक्टेड सा, यूनिक सा, लिबरल प्रोग्रेसिव पूल था जो पता नहीं घरों से इजाजतें कैसे लेके आई, फिर डिक्टेटरशिप के खिलाफ उन्होंने कैसे, यू नो, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी रही. लेकिन इवन देन जब वी, लाइक आई वाज बोर्न इन द 80s, राइट. अब 90s में कोई चैनल नहीं है, अखबार में जर्नलिस्ट बहुत कम लोग कहेंगे बेटी जाओ जाके अखबार में जर्नलिस्ट बन जाओ. 2001 में चैनल्स आए, न्यूज एंकर्स आए, फिर हमें समझ में आई कि नहीं, दिस इज डूएबल, ये हो सकता है. सो आई थिंक फर्क है जो मेरी जनरेशन में और अब जो जनरेशन आई है, बिकॉज अब जो 2000 में पैदा हुए हैं, साल 2000, वो भी 20 साल के, वो एक और, यू नो, जनरेशन बीच में आ गई है जो कि अब वर्कफोर्स में आ रही है. उसमें फर्क है. Now they look at people like us, right? If someone who's born in year 2000 and she might be 20 years old today, right? 2002 onwards, they see that regular women coming on television, doing news, doing shows, going in the field, and it's a respectable field, and wherever they go, they are sort of, you know, उनके साथ एक अच्छी नजर से देखा जाता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अच्छी नजर के ऊपर तो खैर मेरा इख्तिलाफ ही है कि भाई, एक तो हम अच्छी बुरी नजर के में हमें क्या होती है, वो एक प्रिंसिपल डिबेट है. बट मैं बिल्कुल एक आम अवामी जबान में कहूंगी कि अच्छी नजर से देखा जाता है अगर एक लड़की न्यूज चैनल में काम करती है, राइट. वो बैरियर शायद आर्टिस्ट को और फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को तोड़ने में वक्त लगा. हमें जल्दी वो ब्रेक मिल गया, एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई. So we were lucky in that. Like when I told my father I'm going to do it, he was like very happy कि ठीक है, it's a good thing. I don't know कि अगर मैं अपने वालिद साहब को कहती मैंने फिल्म करनी है, पता नहीं वो क्या कहते हैं. Probably मुझे इजाजत दे देते, but I can not right now predict what his reaction would have been. Right? मुझे नहीं मालूम. जब मैंने कहा मैंने खबरें पढ़नी, मैंने कैमरे के सामने आके रिपोर्टिंग करनी है, यूज लाइक यहाँ जबरदस्त करो, बड़ा अच्छा काम है. सो मैं आपको ये एवरेज माइंडसेट का मैं फर्क बताऊं कि ये है. बट हैविंग सेड दैट, अभी भी बैरियर्स हैं लड़कियों के लिए, प्रोफेशनल भी, लेकिन ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इसलिए बिकॉज मेरे साथ कोई कभी दफ्तर नहीं आया. मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां और काम करती हैं, इंटर्नीज भी आती हैं, दे कम, दे वर्क देमसेल्व्स, दे गो. प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, 9 to 5 या जो भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है. मेरे साथ जो मेरी टीम में लड़कियां हैं, मेरा प्रोग्राम 11 बजे खत्म होता है, वो 4 बजे आएंगी, 11 बजे प्रोग्राम खत्म करा के 11:30 घर जाएंगी. So, हर किसी के लिए ये टाइम अपना मुख्तलिफ होता है. कुछ मेरे पास इंटर्नीज आती थी, वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन हर घंटे बाद घर से फोन आता था, 7 बज गए घर आओ, 8 बज गए घर आओ. फिर वो बेचारियां नहीं कर सकी. वो लड़कियां जिनको घर से सपोर्ट थी वो कर सकी और वो अपने बलबूते पे करे. और मुझे बड़ी मजे की बात है, मेरी टीम में एक लड़की है, कहती थी जब मैं न्यूज चैनल में आई तो मेरे खानदान वालों ने बातें की, देखिए जी न्यूज चैनल में जाएगी, पता नहीं खराब हो जाएगी लड़की, ये होगी वो होगा, यू नो, whatever wherever she's coming from. और कहती है अब वही मुझे ना बड़े
इत्तेमाद से कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं ये एयरवाई में काम करती है हमारी बेटी, बिल्कुल ठीक। अब कोई को छोटे मोटे कोई इरिटेंट से फोन कर देते हैं कि ये तो करवा दें, वो करवा दे, कोई ये कांटेक्ट करा दे, ये ढूंढ दे, सो ये तो माइंड है जहाँ पे लोगों का है, और आपको अपने काम से ये कभी कभी मैप करना पड़ता है। नहीं समझ पाते लोग, फाइन, फेयर इनफ, ना समझें, at least someday your work will speak for you, so just focus on that. That's my only advice. Fair enough. अच्छा, चलिए ठीक है. That's I'm glad to hear कि it's been a very very professional journey for you. But you've never encountered any unprofessionalism in your journey, and if you did, how did you tackle it and we get out of it? यार इसमें बहुत सारी बातें हैं. Like for a woman ना, this world is somewhat you have to perceive it from a different lens. जैसे even in universities, if you're getting good grades, people and boys especially around you will sort of say कि ये लड़की है, देखो ना इसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, फलाना टीचर जो है ना वो खवातीन को अच्छे मार्क्स दे देता है. हो सकता है इस बात में हकीकत हो, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो लड़की मेहनत कर भी रही होती है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, राइट? तो मैंने फेस किया है, मैंने फेस की ये बात है. अच्छा, फिर समटाइम्स व्हेन यूर अब मैं देख रही हूँ वो LGS का स्कैंडल आया, व्हाइल ग्रोइंग अप देयर वर सम टीचर्स वी फेल्ट दैट they shouldn't have spoken to us in a certain way like they did. उस वक्त अकल नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, शऊर नहीं था, या था भी तो शायद उस वक्त बात करने की जरूरत नहीं थी. You know what I'm saying? उसके अब मैं देखती हूँ कि वो चीज भी आई थिंक शायद आदमियों को उतना फेस ना करना पड़ता हो while they're in college or in universities, right? एक बैरियर, मैं अपना लॉजिकल केस बता रही हूँ कैसा हो. So once you go into the workforce, not only media, you go anywhere in any field, so the same barriers, the same rules, the same mindset is applied everywhere. For example, you go to मतलब मीडिया तो चूंकि शक्ल हमारी आती है, हम ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं. You go to any hospital, what nurses are facing over there, just because they're not that glamorous नहीं है, या उतनी उनके ऊपर लाइमलाइट नहीं है, तो लगता है कि जी शायद मीडिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे या ज्यादा यहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म होगा. What I'm trying to say is women going anywhere in any field, उनको कोई 3-4 बेसिक जो हर्डल्स है ना वो फेस करने ही पड़ेंगे. अच्छा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं नई रिपोर्टर आई थी और मैं रात को बैठ के अपनी स्टोरीज एडिट कर रही होती थी, तो मेरे इर्द गिर्द लोग बातें करते थे, जो यंग और लोग थे या कुछ सीनियर्स भी, कि देखिए ना ये इन मारिया का जो काम है ना वो फलाने एडिटर बड़े बड़े ध्यान से चेक करते हैं, और देखिए वो उनके काम पे ना फलाने जो NLA है ना बहुत ही इत्मीनान से अच्छे शॉट्स लगा के ना अच्छा काम करके उनको देते हैं. फाइन, ठीक है, सुन लिया, आगे बढ़ गए. अब कहना नहीं चाहिए, वो लोग वही हैं जो ये बातें करते थे, अल्लाह मियां ने इज्जत दे दी है, हम आगे निकल गए हैं. आपने वो बातें फिर इग्नोर करनी होती हैं. वो वहीं बैठ के वही बातें करते होंगे उन बेचारी नई लड़कियों के बारे में या नए लोगों के बारे में, और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, 7-8 साल बाद मैं आगे निकल गई. बट हैविंग सेड दैट, तो ये हर जगह प्रॉब्लम्स है. एंड ऑल्सो देखो, जिस फील्ड में मैं हूँ, इधर मैं ये कहूंगी कि जहां मुझे कुछ इसके जैसे कहते हैं ना रुकावटें भी थी, तो बहुत से फवायद भी थे. बिल्कुल ठीक. फवायद ऐसे थे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज एंकरिंग शुरू की, और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि फीमेल न्यूज एंकर होने की वजह से मुझे जल्दी एक तो ब्रेक मिल गया, बिकॉज खवातीन कम थी. और इसी वजह से प्रोग्राम में भी, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरमाइन my own journey and my own process, because it has taken me like 10 years to get here. ये नहीं कि मैं आज आए और परसों ही किसी ने मुझे मेरे प्लेट पे रख के दे दिया. मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, मैंने मैदान में सवात ऑपरेशन के बाद जाके वहां से सब कुछ किया है, रिपोर्टिंग वगैरह किया. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि चूंकि उस टाइम एंड स्पेस में ये जगह थी, एंड बीइंग अ फीमेल इट डिड हेल्प मी, राइट? लेकिन इसके बहुत सारे जो फ्लिप साइड पे प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जैसे आदमी सोशलाइज करते हैं स्टोरीज लेने के लिए, एक ब्रो कोड होता है उनका, वो रात को 11 बजे के बाद कोई सोर्स है, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई उनको फ्रेंड्स हैं, बैठ के गप्पे मार रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं, खबरें भी बनती हैं, बॉन्डिंग होती है. आई कुड नॉट डू दैट, बिकॉज हाँ, अगर 11 बजे के बाद मैं कहीं जाके वैसे ही उसी माहौल में गपशप मारूंगी मेरे बारे में, तो फिर ऐसे स्कैंडल बनेंगे जो मेरे सारी उम्र मैं उनसे कभी निकल नहीं पाऊंगी. तो ये चीज, अच्छा फॉर एग्जांपल कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि एक चीज मुझे मालूम ही चल गया कि उनको ना फिर वो दे नॉट कंफर्टेबल कमिंग ऑन
समटाइम्स ऑन विमेन्स शो उनको कोई घर से होता है कि नहीं खवातीन एंकर के शो में तुमने नहीं जाना। एक को तो मुझे पता चल गई, मुझे 2-3 तो मुझे और शक है कि शायद उनके को पीछे से एतराजात है उनकी घर की खवातीन का कि ऐसा ये भी होता है। हाँ मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बिल्कुल, एक का मुझे कंफर्म मुझे पता चला है, बिकॉज वो इनडायरेक्टली कहीं से मुझे पता चली बात कि उनकी बेगम साहिबा को बात नहीं पसंद थी, और कुछ को मुझे लगता है वो इसलिए नहीं आते कि कुछ है प्रॉब्लम। सो ये बात है। और इसके अलावा आई थिंक जनरली खवातीन को वो रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है हमेशा से। शुरू में मेरे प्रोग्राम में व्हेन आई वुड टॉक तो पीपल वुड टॉक ओवर मी, आवाज ऊंची करके ना कि ये, बट इवेंचुअली एक दफा दो फिर देन आई पुट देम एट देयर प्लेस पोलाइटली येट फर्मली, राइट। आई थिंक ये भी थोड़ी सी बात होती है। बाकी है you're judged on your appearance all the time. You could have a killer content but your hair are not right, so the highlight would be कि बाल अच्छे नहीं बने हुए। ये भी मेरे साथ हुआ। एक शो किया, उसमें बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमने डिस्कस किया, पर मेरे बाल अच्छे नहीं बने हुए थे, और फिर सब में बाल अच्छे नहीं बने हुए, मतलब nobody sort of saw कि मैंने बोला क्या है। ये सारी बातें भी हैं। सो एक जिसे कहूंगी एक बैलेंस सा है। क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, होनी चाहिए। इसमें खवातीन को खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा। मुआशरे को भी वक्त लगेगा। आई थिंक अभी 10, 15, 20 साल और लगेंगे कि जब हम जहाँ पे किसी भी महजब मुआशरे के करीब पहुंचे, सोच के हवाले से, सोच के हिसाब से। फेयर इनफ। ये चलिए, ये तो आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया, प्रोफेशनलिज्म। नाउ यू आर आल्सो फेसिंग पॉलिटिशियंस, यू मेंशन्ड, क्या पॉलिटिशियन से कभी आपको बहुत महसूस हुआ है, कभी कोई थ्रेट्स हो गई हो कि ये ना करें, या कभी कोई खतरनाक मैसेजेस या अनप्रोफेशनलिज्म, एनीवे वी फील दैट women journalists or women anchors do come under fire when it comes to dealing with politicians? अच्छा, अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। उसमें एक और बात भी कि इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ स्ट्रांगली योर मैनेजमेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। एक बात बता दूं कि एवरी एंकर इज एज स्ट्रांग एज द मैनेजमेंट्स बैकिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो जब वो स्क्रीन पे बोल रहा होता है उस कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस उसको उसकी मैनेजमेंट ने दिया होता है। सो अगर मैनेजमेंट अपनी सपोर्ट खींच लेगी, तो फिर वो एंकर जो है बिल्कुल। सो आई बीन सो लकी सो फार कि मैंने जियो में काम किया, totally backed by management. They have a strong spine. They cover you. They sort of they stand up for you. Even in ARY, एक आध दफा मेरी टीम की किसी मेंबर से किसी पॉलिटिशियन ने बदतमीजी की थी, मुझसे भी नहीं की, और even my boss called that person up and you gave him peace of mind कि you cannot talk to falani teams, falani member like this. So I know it for a fact. तो ये मेरे सामने हुआ वाकया ना। फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने कहा नहीं वो मैं ये हो गया वो हो गया, फिर आए बाएं शाएं करना शुरू हो गया। लेकिन उसी वक्त उनको कहा गया कि नहीं आप ऐसे नहीं बात कर सकते। नाउ लिसन, माय इमीडिएट सुपरवाइजर ना भी करते फोन, मतलब ठीक है वो एक प्रोग्राम में एक टीम मेंबर है समटाइम्स, बट ही मेड श्योर कि यू कैन नॉट टॉक टू माय टीम मेंबर, ओनली आई कैन टॉक टू माय टीम मेंबर। बेइज्जती करनी होगी मैं करूंगा, कुछ करे मैं करूंगा, डायरेक्टली आप जो है ना कि बदतमीजी नहीं कर सकते। और वो माशाल्लाह हम सबको बिल्कुल सेट रखते हैं, लेकिन उनका ये रूल है जो होगा वो हम करेंगे, बाहर से किसी को नहीं करना चाहिए। सो समटाइम्स दे कॉल देम, और वो भी हमसे वो ये नहीं करता कि फलान तुम्हारी ये वो, बस हमसे हंसते हंसते कह देते हैं कि बुरी लग गई है फलानी बात किसी को। अच्छा, मैंने कहा तो फिर आपने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मैंने कहा तुम्हें बता दूं, बट अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया मोर कि मुझे लगा हो कि मुझे कन्वे किया हो कि बहुत डिस्प्लेजर है आपकी बात पे। यूजुअली ये प्रेशर्स मैनेजमेंट्स लेती और उनको पता है कि ये मैनेजमेंट को कि प्रेशर्स आने हैं, they're used to it ना, वो जिस टियर पे जिधर लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। बट देन देयर आर सम रियली बिग प्लेयर्स हु आर लाइक वेरी सीनियर एंड वेरी, जो मैनेजमेंट से भी मुझे लगता है कि एक टियर आगे होते हैं in a way, in their influence and in their वजन and their कद and whatever, and their professional कद and professional वजन। तो वो फिर अपने तौर पे करते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है ऐसा वक्त आया नहीं कि मुझे, जैसा मुझे कहा ना अभी 10 मिनट पे इसका जवाब दे रही हूँ, मुझे कोई एक एग्जाम्पल कोट नहीं कर पा रही कि हाँ फलानी दफा ये हुआ था। सो फार आई बीन वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, हो गया ऐसा जरूर, बट मैं अपनी इंडिविजुअल एग्जांपल दे, मैं ये कहूंगी जो कि मेरे साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं हो सकता। दिस इज अ वीक केस टू प्लीड। मेरे साथ नहीं हुआ, शुक्र है नहीं हुआ। क्या लोगों के साथ हो रहा है? हो रहा होगा, एंड शायद हुआ।
Fair enough. नहीं, absolutely नहीं. That's great. I do agree कि मैनेजमेंट और लीडरशिप का बड़ा फर्क पड़ता है, and I wish कि वही रेप्लिकेशन अगर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाए तो बहुत फर्क. I mean, I have not experienced that. ऐसा नहीं होता है कि मेरा peers can stand with our production heads. But नहीं, they don't. Anyways, अच्छा ये बताएं कि now I've always wanted to know आपके इतने सारे जो होस्ट आते हैं, क्या ये sometimes I see repetitive faces coming a lot of time, यार वही लोग आ रहे हैं, क्या ये पर्ची निजाम चल रहा होता है कि यार आज मुझे बुला दो या कर दो, या is it a choosy mechanism from the anchor side, let's who to call? ओके, इस पे दो तीन बातें होती है. एक तो है कि उस दिन की जो टॉप स्टोरी है ना, उसका जो सबसे अहम न्यूज मेकर जो स्टोरी के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है मुझसे लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कराची JIT आएगी तो हमारी प्रायोरिटी होगी हम अली जैदी को लें या सईद गनी को लें या मुर्तजा वहाब को लें, बिकॉज दे आर द वंस हु आर स्पीकिंग ऑन दिस इशू. समटाइम्स वो कहते हैं जी वी आर नॉट अवेलेबल, एक ही स्लॉट है, बहुत 2-3 शोज होने, हम फलाने शो पे हैं, हमें रिकॉर्ड कर लें. अच्छा, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं बन रहा, अच्छा अब ये गेस्ट हमारा नहीं हो पा रहा, अब क्या करें. फिर हम जाते हैं कैटेगरी दूसरा हम कहते हैं कि अच्छा somebody, if not these 3 people who are the news maker, somebody who is probably one tier below, but who can speak on these issues, then we sort of try to get those guests. अच्छा, वो भी नहीं हुए because I work on weekends, so sometimes on Sundays we don't get guests because कोई अपने हल्के में गया हुआ है, कोई अपनी अच्छा, हल्के में जाते हैं लोग, मुझे अंदाजा. हाँ, जाते हैं, मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ जाते कौन जाते हैं, मुझे सबका पता है. अच्छा, दूसरा ये फिर ये वो कहेंगे कि यार देखो मुझे एक दिन संडे छुट्टी का मिल रहा है, 10 बजे मैं फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ, या मेरे फलानी शादी है, मेरी फलानी बर्थडे, प्लीज मुझे आज के दिन माफ कर दो. तो हम मोस्टली ना, देयर इज नो बिग डिजाइन बिहाइंड इट, इट्स प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अबाउट अवेलेबिलिटी. अच्छा, फिर कभी कभी होता है कि हम कहते हैं आज कोई न्यूज मेकर नहीं है, या चलो सुनो, सोचो हमने बहुत न्यूज मेकर से बात कर ली है, हम क्यों ना इस पे एनालिस्ट को बुला लें. अच्छा, एनालिस्ट भी जो है उसके ऊपर भी किसी से आपकी नहीं बनती, किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं, वो आपके शो पे नहीं आएंगे. कोई किसी ये बात भी, कोई जो है वो कह रहे हैं आज मैंने नहीं आ रहा, मेरा मूड नहीं है, मूड भी नहीं हो सकता, नहीं आ सकते, माफी, अगले हफ्ते चले जाएंगे. अच्छा, किसी गेस्ट ने कहा है कि मैंने फलाने चैनल पे नहीं जाना, मेरे साथ इस चैनल पे मेरी बदतमीजी हुई थी, मैं नहीं जा रहे. अच्छा, कोई कहेगा कि नहीं, जो मैं दूं खाली इन 3-4 एंकर्स के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा. तो ये मुख्तलिफ चीजें होती है. इट्स नॉट लाइक कि हमने बैठ के कोई ग्रैंड डिजाइन बनाया कि यार आज ये ना ऐसा एजेंडे से जो भरपूर हमने शो करना है ना, इसमें हम इसको बुलाएंगे खास तौर पे. समटाइम्स वी डू व्हेन इट्स अ बिग न्यूज डे. ओके. और वी वांट पीपल, जैसे मेरी ख्वाहिश होती है कि यार वो आके बोले तो हेडलाइन बने, मेरे प्रोग्राम से हेडलाइन निकले, अखबार में छपे उसने ये बोल दिया है. सो वी ट्राई टू गेट दोस सॉर्ट ऑफ गेस्ट्स. बाकी हर पार्टी ने कोई 8-10 बंदे मुख्तस किए हैं, वो एक लिस्ट होती है जो उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास होती है. भाई, दीज आर द पीपल वी वांट देम टू रिप्रेजेंट अस. तो उसमें रद्दोबदल होता है, कुछ चेहरे आते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन मोर और लेस वो एक लॉक्ड गेस्ट लिस्ट है जो उन्हीं पार्टी के मेंबरान की तरफ से मिलती है. कभी कभी अपनी पर्सनल दोस्ती के ऊपर हम बुला लेते हैं, वो आ भी जाते हैं, लेकिन मोर और लेस एक बड़ा सिस्टमैटिक सी एक मशीनरी सी बन गई है, जो मुझे खुद भी लगता है बड़ा मोनोटोनस है. द साइकिल शुड ब्रेक. बट देन अगेन, इफ दोस पार्टीज थिंक दैट दीज आर द 10 पीपल हु आर बेस्ट इन रिप्रेजेंटिंग अस, वो किसी भी कोई कहेगा जी टेक्निकली अच्छा है, कोई कहता है जी बदतमीजी ज्यादा अच्छा करता होगा, कोई कहता है अच्छा ये गेस्ट अगर आपके पास जो आगे से बदतमीज है, हम भी अपना बदतमीज वाला ही भेजेंगे आपके पास, राइट. इतनी तमीज. अब पहले बताएं कि और जमात से कौन कौन आ रहा है. अच्छा, ये अच्छा, इसकी टक्कर पे हम फिर ये भेजेंगे, ये बताएंगे आपको कि ताकि ये इसको सही से आए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन. इट्स नॉट लाइक एक ना, मुझे लगता है वो फॉर्मूला सा बन गया है जिसको हमें रिवैम्प करने की जरूरत है. I think we've become too comfortable. We've become too comfortable on screen. कि भाई हमें पता है कि यार it works like this, चलो जी ये कर लो वो कर लो, okay, done, हो गया आज का प्रोग्राम. रिसर्च वगैरह या टॉपिक सिलेक्शन वो चेंज होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हर दिन कुछ और होता है, लेकिन वो इसीलिए आपको वही गिने चुने चेहरे नजर आते हैं टेलीविजन के ऊपर. ठीक है. तो अच्छा, तो ये मतलब कि एक मैकेनिज्म है जो चल रहा है, and you are saying that it should change. I think so. You think so? अच्छा, ये मुझे बताएं कि you wanted to change. It's been happening for a while. मैं खुद बड़ा देखता हूँ. I watch a lot of political shows as well. Some click, some do not click. But आपको लगता है कि I mean, do you think that these political talk shows bringing these news politicians on, is it making a difference in a political setup? ये हम करते भी हैं, or is it just there for time pass? नहीं, I think time pass तो नहीं है. For example, बहुत सारे इश्यूज मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पे इतना प्रेशर डाला गया मीडिया के थ्रू एंड टॉक शोज के थ्रू जो सॉल्व हुए. इसमें सबसे बड़ी मेरे ज़हन में भी आ रहा है, ज़ैनब कत्ल केस आ रहा है. मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी जो व्यूअरशिप है
Yes. उससे कनेक्ट कर सकती इमोशनली भी। ठीक है यार 2 हफ्ते इस मुल्क का हर बड़ा एंकर ज़ैनब के ऊपर शो करता रहा 2 हफ्ते। ठीक, बिल्कुल ठीक। और पंजाब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने डबल अपनी जो रिसोर्सेज लगाई, उन्होंने अपने बंदे लगाए, उन्होंने ढूंढ निकाला उस आदमी को, राइट। अगर हम 1 दिन करते 2 दिन करते शायद फर्क ना पड़ता, भूल जाते, वो भी कहते चलो आज स्टोरी निकल गई है तो ठीक है, भूल भाल जाएंगे लोग, अब किसी को क्या याद रहेगा ना। सो पॉइंट इज दैट इसके अलावा बेशुमार और एग्जाम्पल, शाहजेब कत्ल केस था एक कराची के अंदर, यू रिमेंबर, जिसका फिर सो मोटो लिया था नोटिस। शाहरुख जतोई केस था, आई होप यू रिमेंबर, वो जेल में लड़का है। ये मुझे 3-4 ऊपर वाकये याद आ रहे हैं। तो यार हाँ, सेंसेशन इन वे, जिसने लोगों की, कौम की इस पे ना साइकी पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। लोगों को ये याद होगा कि ये 3 बड़े वाकये हुए थे। पॉलिटिकली तो यू नो, आई नो, देयर इज ऑलवेज समटाइम्स समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जिसका एक नॉइज ऑन द स्क्रीन क्रिएट किया जाता है टू गेट थिंग्स डन बिहाइंड द स्क्रीन, राइट। We understand it, those who are doing it, they understand it, but if it's news of the day, how can we not cover it and how can we ignore it? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो चलिए ये मेक सेंस। अच्छा ये मुझे बताएं कि आई एम ऑलवेज, ये जो ब्रेक पे आप जाती हैं, व्हेन यू गो ऑन अ ब्रेक, व्हेन यू सिटिंग विद द पॉलिटिशियन, उस वक्त क्या हो रहा होता है, उस वक्त व्हाट्स हैपनिंग व्हेन यू नो, व्हेन नो वन्स वाचिंग? It depends on the guest. Some people are extremely funny, they have great sense of humor, so we would have a lot of fun. Some people are dry, some are boring, some people would be like, yeah, some are very formal. It just depends on who it is. If there's someone who is so much, sometimes the conversations off the screen are far more funnier because in this they don't have any guards, all guards down, और फिर वो गप्पे मारते हैं, लतीफे भी सुनाते हैं. And also you have to understand that these people have great working relationship. It doesn't mean कि जी वो मुख्तलिफ जमातों में है, इसका मतलब है कि वो दूसरे के खून के प्यासे हैं. They work together for legislation. They work together on a lot of issues. Committees होती हैं, steering committees होती हैं, उनमें बैठ के मुख्तलिफ पार्टी, क्रॉस पार्टी लाइंस काम करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, इनका आना जाना होता है, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, इनकी आपस में दोस्तियां हैं। मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है। So point is कि ऑन स्क्रीन डिबेट करना या कोई और बहस करना एक अलग बात है, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक फ्रेंडली माहौल होता है, मोर और लेस। एंड ऑल्सो आपको बताऊं कि जो गेस्ट आता है ना, वो पूछ कर आता है कि और लोग कौन है, तो यूजुअली वो खुद ही अवॉइड करते हैं कि अगर उनकी किसी के साथ बहुत अनकंफर्टेबल इक्वेशन है या बातें बिटर हो सकती हैं, तो फिर वो कहते नहीं, फिर हम नहीं आ रहे, आप या हम या वो, ये इस तरह भी कहते हैं कि फिर अच्छा नहीं है, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो वी हैव मोर और लेस अ वेरी गुड प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, होती हैं, बट वो वी ट्राई टू मेक श्योर कि भाई एक सिविल उसमें, अब जैसे कोई बूट लेके आ जाएगा शो के अंदर, किसी के फरिश्तों को नहीं मालूम कि वो बूट आ जाएगा, राइट। दिस वाज समथिंग, बिकॉज देन आई आस्क्ड द टीम, आई आस्क्ड एवरीवन व्हाट हैपेंड, यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, बताओ तो सही। और उनके खुद जिसे कहते हैं, उन्हें नहीं मालूम था उनके साथ क्या हुआ, वो सुन हुए थे, सकते में थे ये क्या हो। सो इट्स समथिंग so outrageous happens, तो इससे कम जो है we have a lot of controlled space कि भाई डायलॉग अच्छे तरीके से हो। अच्छा ये बड़ा ही फिनोमेना है लिफाफा जर्नलिज्म। बहुत लोग कहते हैं जी लिफाफे चल रहे होते हैं, जर्नलिस्ट को लिफाफे दिए जाते हैं, क्या ये वाकई में सच बात है या सिर्फ ये भी बस फेंका जाता है जस्ट टू डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ जर्नलिस्ट अलाइक? अच्छा, इसमें कुछ टीयर्स है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि 2000 के बाद जब चैनल्स आए ना, उससे पहले जो पे ग्रेड्स और पे स्केल्स इतने अच्छे नहीं थे मोस्टली। लेकिन अब जो प्राइवेट चैनल्स आए, खास तौर पे मैं कहूंगी 2008 से 2000 जैसे कह लें आप 16-15 तक, बल्कि 15 में जब वो खास तौर पे बोल भी आया था, तो बहुत ज्यादा पे बेहतर हो गई थी, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं एंकर्स को भी, और खास तौर पे ओके हाँ, टाइम पे मिलते हैं पैसे वैसे। अब जो है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट्स कोविड, काफी अरसे तक जो हमारे चैनल में पे कट्स भी नहीं हुए थे और टाइम पे भी मिल रहे थे, लेकिन पॉइंट कुछ चैनल्स में नहीं मिल रहे, कुछ में बहुत ज्यादा पे कट्स भी हुए हैं। सो देयर वाज अ गुड टाइम वेयर वी गेटिंग प्रॉपरली पेड, और जब वो आप पे खास तौर पे वो जो अमाउंट लगाते हैं ना कि फलाने से 65 लाख ले लिए, इतने 1 करोड़ ले लिए, 2 करोड़ ले लिए, पॉइंट इज दैट के मोस्ट ऑफ द सीनियर एंकर्स आर मेकिंग अच्छे पैसे, तो उनको 1 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख लेने की शायद लिफाफे में रख के जरूरत ना पड़े। हाँ, कुछ आपकी अलाइनमेंट्स हो सकती हैं आइडियोलॉजिकल, वो बात हो सकती है, कुछ शायद आपके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी एक स्टोरी के पीछे, कुछ शायद आपके अपने
वो मैं नहीं कहूंगी कि जी बिल्कुल कोई आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हो सकते हैं कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो, लेकिन आप कहें जी कि वो लिफाफे हैं या वो ब्रीफ केस आते हैं, आई थिंक वो ज्यादा फिल्मी, पिछले जमाने में आप फिल्में देख लें उठा के, हीरो के हीरे आते थे जी, वो उसमें स्मगलर हीरे लेके फिर रहे होते थे, तो अब भी जो आपका ख्याल है कि मतलब क्या मुझे लगता है तो उसी जमाने में जो ब्रीफ केस में पैसे रख के आने से निकली नहीं हमारी सोच, नहीं ऐसा हो रहा। बट क्या इसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, क्या उनकी अपनी लॉबीज नहीं है, क्या उनकी अपनी बाइसेस नहीं है, क्या उनकी अपनी इंक्लिनेशंस नहीं है? बिल्कुल है, और वो नजर भी आती हैं, बट जरूरी नहीं कि हर जगह खाली मॉनेटरी फायदा हो। कुछ लोगों ने फायदे उठाए हैं, नौकरियां ली हैं, बिल्कुल ली हैं, आपको उनके नाम भी पता है, आप देख सकते हैं कि कौन सहाफी हैं जिन्होंने नौकरियां ली, फायदे उठाए, ठीक है, गुड, वो नजर आते हैं, वो पब्लिकली लिए हैं उन्होंने। ओके, मतलब यू से द फिनोमेना एग्जिस्ट कि ये है, लेकिन अब हाँ, उसकी शेप एंड फॉर्म तब्दील हो गई है, लेकिन इन अ वे अगर मैं कहूं कि जी अब सिर्फ पैसे लेके आप किसी की लाइन टो कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। यू एंड ऑल्सो एक और बात बताऊं आपको, अगर आप उस इशू पे कन्विंस ना हो, स्क्रीन फौरन पकड़ लेती है। जिस दिन शो आप जिस पैशन से आप उस शो पे शो करते हैं जो आप कन्विंस्ड हो, वो भी स्क्रीन बता देती है। और अगर आपको पता हो कि दिल में चोर हो, आप पता हो कि यार इसके अल्फाज नहीं है, वो भी स्क्रीन बता देती है। जिस दिन आपने कोई ये स्क्रीन बड़ी जालिम चीज है। You have to you work there, right? लोग स्मार्ट हो गए, and I believe you have never been caught in any crossfire situation where someone has accused you of such a thing ever, or have you heard of it? You have? I've tried to be not about me, लेकिन बीच में कुछ लिस्टें निकली थी जी, याद है 2014 में, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जामात लगाए गए थे। वो बाद में कोर्ट में भी गया मामला, जिन पे पैसे देने का इल्जाम था उन्होंने भी क्लैरिफाई किया, कोर्ट में भी गया, वहां से भी वो सबने क्लैरिफाई कराया कुछ लोगों ने ये। सो बट आई थिंक इट्स सो इजी टू स्लैंड। अच्छा, ये तो लिफाफा हो गया ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं लिफाफा लेते तो एक और बड़ी अच्छी कैटेगरी है, वो है पटवारियों की। तो यहाँ पे आप पटवारी होंगे, मतलब बीच में कौन सा वो पुल सरात है और उसको नहीं पता क्या कहते हैं, या तो पटवारी है या आप लिफाफा है। एक ही शो में एक बंदा मुझे ट्वीट करेगा आप लिफाफा है, एक करेगा पटवारी है, कहेंगे आप जियाली हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इवेंचुअली मैं कहूँ, लोग पता नहीं क्या अपने परचीज कर रहे होते हैं। हाँ, पर ठीक है, इट्स ओके। एंड ऑल्सो लिसन, माय पॉइंट इज कि या तो होना कि बैलेंसिंग ना हो, या तो कि एक ही तरह की आवाजें, जैसे बहुत ही प्रो पटवारी, चलो मैं बहुत ही प्रो एक जमात की जा रही हूँ, पीएमएलएन ले लेते हैं, स्क्रीन पे प्रो पीएमएलएन आवाजें भरी हैं, ऐसा भी नहीं है, स्क्रीन पे प्रो पीटीआई आवाजें भरी हैं। इट्स अ बैलेंस। If you know an anchor has an inclination and you know where is it coming from, then there are a lot of anchors who are coming on different networks and at the same time slot who might have an inclination towards someone else. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। There is a fine balance. मतलब के so just value it यार। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रही, रिमोट की ताकत इस्तेमाल करें, मत। Absolutely 100%। ठीक है, अब just few more questions। अब ये है कि अब चले, अगर इस सिचुएशन में जर्नलिस्ट फंसते हैं या यू आर दे अक्यूज, नाउ इज देयर अ फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिस्ट और अ मैकेनिज्म कि आप मिलके आप बोलें कि यार इस पे हमें बात करके इस चीज को अलग तरीके से डील करना चाहिए, और आर ऑल जर्नलिस्ट लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड कि यार आई कांट बॉदर विद यूनाइटिंग? आई थिंक कि पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री काफी जिसे कहते हैं ना डिवाइडेड है, और इसमें कुछ अपना इनका हाथ भी है, कुछ खास तौर पे कोशिश भी की गई कि इनको डिवाइडेड ही रखा जाए, ताकि क्योंकि इकट्ठे हो जाएंगे किसी कॉज के लिए तो एक टफ टाइम दिया जा सकता है किसी भी कुव्वत को। मैं कहती हूँ वो सियासी है, गैर सियासी है, कोई भी हो सकती है, मैं इसमें किसी एक को नहीं इल्जाम दूंगी कि भाई खाली एक ही तबका चाहता है कि मीडिया डिवाइडेड रहे। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड डिवाइडेड मीडिया सबको सूट करता है, दोज हु आर इन पावर, बिकॉज वो मिलकर कोई एक जिसे कहते हैं ना प्रेशराइजिंग फोर्स नहीं बना सकते। और इसमें फिर उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, कुछ उनकी अपनी ग्रीवेंसेस भी हैं। जैसे किसी एक नेटवर्क को लगता है कि जब हमारे साथ हो रहा था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई उस वक्त, तो अब जब इनके साथ हो रहा है तो हम फिर हमारे टाइम पे तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, तो ये क्या हो रहा है, उस वक्त उनको नहीं पता था हमारे साथ क्या हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरकरंट, एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज पता नहीं अभी सॉर्ट आउट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब इट्स अ वेरी disturbing situation, I would say, and it should not have been like that. I think the big heads in the industry should, I hope they realize that in long term probably this is going to come back and bite each one of them. अगर किसी एक के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, there is no probability कल को किसी
someone else is in power और फिर वो आपके साथ हो. What I'm trying to say is कि अगर एक दफा powers को ये अंदाजा हो जाए कि they can get away with it, then be it anybody in power, anybody, any जमात. सही. Then once they know कि ये line एक दफा cross हो गई है और कोई नहीं बोला है, तो कल को कोई और आ सकता है जो अभी शायद जमहूरियत के बहुत बड़े अलमबरदार हों, अभी बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत बड़े अलमबरदार हों, जब वो हुकूमत में आए उनको अच्छा ना लगे, लेकिन चूंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गई हो और कोई इस पे कुछ हुआ ना हो, तो कहेंगे ठीक है, वी कैन आल्सो गेट अवे विद इट ना. तो हमें ये दरवाजे इस तरह से मजबूती से बंद कर देने चाहिए कि अगर एक दफा हुआ तो फिर दैट विल हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. 100%. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या it's a work in progress? Yeah, it's always a work in progress and it will be a work in progress. और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो आपको इस खित्ते के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा. पहले मैं बड़ा सोचती थी कि यार हमारे यहाँ पे देखे ना, अब जमहूरियत को वक्त ही नहीं दिया, आमरीत आती रही, उनको वक्त नहीं दिया उन्होंने. फिर मैंने और फिर उसमें मैं ये कहूंगी कि सियासतदानों की अपनी भी जिसे कहते हैं दूरअंदेश ना होना, उनको दूरअंदेश नहीं थे. वो जो मैं बात आज कह रही हूँ कि एक दफा दरवाजा खुल जाए तो फिर उसको हर कोई खोल के अंदर आ जाए करेगा, वो दरवाजे को लॉक करके उसी वक्त चाबी फेंक देनी चाहिए थी, लेकिन वो जाके चाबियां पकड़ाते रहे कि जी हम हाजिर हैं. अब प्लस लेकिन मुझे अब देखती हूँ भारत में मतलब वहाँ भरपूर तरीन जमहूरियत, और वहां पे भी अब एक सिविलियन फैशिस्ट डिक्टेटरशिप इस वक्त कायम है, राइट? जिसमें ना मीडिया बोल सकता है, ना अदालतें उसके सामने कुछ कर सकती हैं, कोई कुछ बोल सकता. आई एम नॉट सेइंग कि जमहूरियत जो है, I don't even know how to sort of put it in words, right. But in South Asia the concept of jamhuriyat jo hai, it really I think it's very unique. Okay. And I sometimes think that it needs a lot of the concept should be reassessed and कहते हैं ना, evaluated again, re-evaluated. Fair enough. I mean, and are we seeing you, becoming a politician or going in activism sometime? I don't think so. Activism, no. Probably yes. Matlab, if some issue I really like and it comes, really, I'm convinced about it. Probably politics. I don't think so. I've been cut from a cloth that would. I'm not thick-skinned enough. Though I am thick-skinned because I work in television and on screen, but I think you need another tier of bardasht and sort of I don't think I have. And also I don't think I relate with any of the political ideology right now that I see on the forefront. Brilliant. Also listen, nobody's perfect, and everyone has flaws, and every party has strengths also. Let's also I won't write down, I won't shoot down all of them कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है. हर जमात की अच्छी बातें भी हैं, कुछ उनके फ्लॉज भी हैं. मुझे लगता है, और दुनिया में कोई भी जमात परफेक्ट नहीं होगी. कि जो कोई बहुत परफेक्ट है, ये देयर इज परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अमेरिका जैसे मुल्क में भी करप्शन है, इवन देन वहाँ गवर्नेंस भी है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं. सो माय पॉइंट इज, मुझे लगता है कि मैं इस मशीनरी में fit nahi ho sakti, being who I am right now, being the person who I am right now. 10 years down the lane, probably if I evolve into someone far more tougher, or right. Maybe, but I don't, right now, today, aaj ki tareekh, aaj ka saal 2020, I don't think this is happening for me. Is it because you're coming from a family of militaries and everything and background? No, nothing. No, it has nothing to do with it. We've always been a very we've been sort of family जहाँ पे ना इतने हमारे opinions जिसे कहते हैं ना इतने loud होते हैं कि जब हमारे शुरू में, जब ईद के दिनों में हमारे खानदान में सारे इकट्ठे हुआ करते थे तो लड़ाइयाँ हो जाती थी politics के ऊपर, because we were like so visibly divided in their own ideology. Right. Yes, absolutely. And everyone was encouraged कि भाई नहीं, it's okay, it's your opinion, you're supposed to express it. तो उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट आई थिंक आई डोंट हैव इट इन मी. इट्स वेरी, आपको अपना खुद ही असेस करके, बजाय से कि आप अपने इतने जिसे कहते हैं ना ओवर एम्बिशियस गोल्स रख लें. सो जस्ट टेक इट स्लो, वन स्टेप बाय स्टेप.
ठीक है, I've got like one last question and we can come to a closing. ये बताएं कि are you a support for the Me Too culture? You know, it's on the rise in Pakistan, and you know, women's sexual harassment. Do you think it exists? And if it exists, is it being given the right sort of exposure from, you know, coming from you as a women anchor? आई थिंक आप किसी से भी पूछ लें, मेरा ख्याल है आप अपने खानदान में जो भी खवातीन है, आप आपकी बेगम हो सकती हैं, आपकी वालदा है, कजन्स होंगी फीमेल, क्या आप उनसे पूछें कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया जहां आपको फील हुआ कि आप हरास हुई हैं? तो आपको मैं ये स्वीपिंग स्टेटमेंट कहूंगी कि 99% खवातीन कहेंगी कि there was a period in their life that they felt uncomfortable, they felt violated, जिसकी आप कहेंगे उसकी एक्सटेंट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, आप उनसे कहें कि पूछ ले, मतलब आप बेतकल्लुफ ये होती है ना कि अच्छा कैन यू प्रूव इट? सो मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू वी कैन नॉट प्रूव इट, बिकॉज वो हम थे और जिसने हमें अनकंफर्टेबल फील कराया वो था, या वो इट कैन बी अ गेज, इट कैन बी अ सिंपल यू नो अ वर्ड और अ जेस्चर, एनीथिंग, and it's between you and that person who you think has violated you, made you uncomfortable. Can I prove it? I cannot. But yes, do I feel that I have been, you know, made uncomfortable at certain times, starting from the very bachpan, school, college, work environment, सब कुछ. It happens to you. But मैं आपको closing में कहूंगी कि even though with the field that I've been associated with, अल्लाह का शुक्र है, I have never ever come across any sort of, you know, harassment, any sort of bad professional experience. Any of the person I've worked with in any professional capacity, be it my management, be it my team members, be it my cameramen, be it my NLEs. So मैं अपने personal, but I'm extremely lucky, I would say that. क्या औरों के साथ ऐसा नहीं होता होगा? I don't know if they say उनके साथ हुआ है, I'll have to believe it. मेरे साथ इस फील्ड में प्रोफेशनली ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और टच वुड, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं हुआ. And having said that, but yes, whenever you go out, generally as a woman, you do feel it. You are made to feel uncomfortable at times. Can I prove it? No. So इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये Me Too आया तो everyone could immediately relate with it. अब इसको हम आगे कहाँ लेके जाते हैं, क्या इसको हाईजैक तो नहीं कर लें, गलत हाथों में ना चली जाए, ये एक अलग डिबेट है. But having said that, I think it's a very important conversation, जिसकी वजह से राफे, I feel actually men are also listening to us. Now I know a lot of my male friends who did not know कि उनकी कुछ बातें harassment में या कुछ बातें किसी को uncomfortable कर सकती हैं. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही. Because वो इतनी subtle और इतनी run of the mill बात है, या वो इतनी normalized बात है कि when I told that person कि देखो फलानी जो तुम्हारे कहता है, the other woman must have felt bad. And he said, listen, I didn't even know that it's a wrong thing to do. For example, one of my friends told me that I flirted with a air hostess, and I said, listen, probably she didn't like it and she had to put up with it because uski naukri thi. And he said, it did not come into my, mind ke ho sakta hai ki, हाँ. And these are well-educated, well-traveled, liberal, progressive, जिसे कहते हैं ना, feminist men we are talking about. Sometimes they also need a lesson. And a lot of professional people who I work with now, sometimes before asking me something, they'd say, listen, I have to ask you something. Can I ask you something? My ijazat. Pehle ye nahi hota tha. Now they are getting sensitized to it. And which is it jitna hona chahiye, kya utna ho raha hai? Nahi ho raha. Lekin being a person who believes in these positive indicators, I would say कि मैं बजाय इसके कि उन चीजों पे जो नहीं हो रही, मैं उन चीजों पे फोकस करूंगी जो हो रही हैं, जो छोटे-छोटा फर्क मैं अपने इर्द गिर्द देख रही कि ये हुआ है. I feel it कि जब से ये चीज आई है. बट इसका एक और बात भी कि now even men are not comfortable mentoring women in a situation where they are alone in a at a place at some so ये एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक्शेल्स पे जैसे चलना होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द हमें एक्शेल्स की तरह चलना है कि भाई खवातीन के आगे बढ़ने के मौके भी खत्म ना हो, लेकिन साथ साथ वो एक हम जेंडर बैलेंस और एक जेंडर जिसे कहते हैं ना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट भी अचीव करें. The world has a lot of soul searching to do, and so does Pakistan.
No, absolutely. You have a big responsibility. You are a leading figure, and women look up to you as well. So it's a very very powerful statement coming from you. This has been a very very invigorating session for me because बहुत सारी चीजें मुझे clear हो गई और मुझे नहीं पता था कि how it works. And I'm sure if we had more time, I'd love to discuss more. And you are also busy. Maria, the thing is that when I do these sessions, मैं focus करता हूँ कि media industry में काफी unity होनी चाहिए. और एक चीज आज prove हो गई आपकी तरफ से भी कि बहुत divide है. हमारे पास टेलीविजन और हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हम यूनियन और प्रोड्यूसर साथ नहीं बैठते हैं, हम काम नहीं करते हैं, हम इवॉल्व नहीं होते हैं, हमारा कंटेंट बैठता जा रहा है. आई डोंट नो इफ यू नो वॉच पाकिस्तानी ड्रामास और क्या थोड़े बड़े. On a very final note, there are people watching for the fraternity. It's very industry related. You are leading as well. Some final thoughts before we come to a close of this, and what would you like to say how to move forward with a very, very amazing media industry? आई थिंक मीडिया इंडस्ट्री के लिए यही बात है कि आप लोग खुद ही साथ बैठ कर ना अपने लिए कुछ रूल रेगुलेशंस और कुछ अपने आगे का लाएअमल तय कर लीजिए. बिकॉज देखिए, जब आप खुद ये स्टेप्स नहीं लेते, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो हमारा मुल्क ऐसा है कि जहां पर आकर फिर कोई आपके लिए फैसले कर देगा और फिर आपको उनको फैसलों को मानना पड़ेगा. खास तौर पे मैं ये जर्नलिज्म के फील्ड की बहुत स्पेसिफिक बात करूंगी. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर मीडिया इंडस्ट्री और नॉट. सो टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स. Try to fix your own flaws yourselves, because eventually अगर आप स्पेस देते हैं, रूम देते हैं, देते ही जाएंगे ये रूम और स्पेस, तो कोई और आके उसे ऑक्यूपाई कर लेगा और फिर वो जो डिसीजन पावर है वो आपके हाथों से निकल के किसी और के पास चली जाएगी. एंड दैट वुड बी कहते हैं ओवरऑल नुकसान फॉर एवरीवन. सो दिस इज द नोट दैट आई वुड लीव दिस कॉन्वर्सेशन विद. And I think it's essential that journalism की डिग्रीज और ये काफी होना चाहिए. We should push. हाँ, वो अब हैं अच्छा, प्रॉपर स्कूल्स हैं, अब हैं. मुझे याद आ गया, सॉरी, ड्रामे देखती हैं आप? पाकिस्तानी ड्रामे हम सही बात पे जा रहे हैं, ऑफ टॉपिक है. नहीं, इट्स ओके. ड्रामे आई वॉच, कुछ वैसे कोई बहुत ज्यादा मशहूर हो, इसका हाइप हो जाए तो हम देख लेते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना, इट रियली नीड्स टू, गाइस लाइक रियली नीड टू वर्क ऑन मॉडर्न स्क्रिप्ट. बिकॉज अभी मैं जो कंटेंट देख रही हूँ जिससे आपको compete करना है, वो कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, टॉपिक चॉइसेस वाइज, वो मुझे लग रहा है कि वो किसी और टेंजेंट पे जाते जा रहे हैं. और हम शायद बहुत ज्यादा इश्यूज से हमें इश्यूज पे बात नहीं कर रहे. हम छोटी इर्द गिर्द इवेंट्स क्रिएट करके उस पे बात कर रहे हैं. आप अपने कंपेटिटर्स को देख लीजिए, वो अब बड़ा तगड़ा इशू उठाते हैं, बोल्ड इशू उठाते हैं, जो आपको अंदर तक झंझोड़ देगा, हिला देगा, और फिर उसकी जो वो ट्रीटमेंट करते हैं ना यार, कमाल. अभी मैंने बुलबुल देखा है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना, एंड में आपको खुशी भी होती है, रोना भी आता है, आपको समझ नहीं आती कि जो इमोशन आप अभी इस वक्त देख, ये क्या है. इट्स अ वेरी हाइब्रिड इमोशन दैट यू नो एट आखिरी सीन जिन्होंने देखा होगा, आई डोंट वांट टू गिव इट अवे, जहाँ पे सब कुछ रिवील होता है. सो आई एम सेइंग वी रियली नीड टू, लाइक, यू आल्सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, बिकॉज ये कंटेंट आपको वरना 4 साल 5 साल चलाने में फिर आपको बाकी आकर आपको जो है ना मुझे अल्लाह भी नहीं बता जो भी है मसला हो जाएगा. नहीं, that was very powerful. I mean, obviously it was off topic, but you know it will help in anyone who's watching, because there are lots of people who watch it. And no, but thank you so much, Mari ji. It's been a pleasure. I hope the content was worth it, and I hope it was you know a light talk, professionalism. It was fun. I hope a lot of concepts are clear, and I hope कि इसमें कोई क्लिप बना के वायरल ना हो जाए. उसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कौन क्या उठाता है. There are publications, there are people get picked up, but let's hope कि अच्छी बात उठे, कोई नेगेटिव बात नहीं, अच्छी बात उस पे उठे. So that's that. I look forward to meeting you soon, inshallah, and hopefully it's been a pleasure. Please give regards to your family as well and your husband as well. You too. Thank you so much. Take care. Love.